یسوع مسیح کے خوبصورت اور جلالی نام میں آپ تمام دوستوں کو میرا سلام۔ آج صبح میں خدا باپ بیٹے روح القدس کا شکر گزار ہوں جس نے یہ فضل کیا کہ آج ہم سب خدا کے کلام مقدس میں سے سیکھیں، اور ضرور ہے کہ خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرے۔ اور خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اچھا نہیں کہ روح علم سے خالی ہو، اور لکھا ہے کہ میرے لوگ عدمی معرفت کے سبب سے ہلاک ہوئے۔ اور آج ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کو فوکس کریں اور خدا کے کلام کی رہنمائی میں چلیں۔ جب ہم خدا کے کلام کی رہنمائی میں چلتے ہیں تو خدا اپنے مکاشفات کو ہم پر نازل کرتا ہے، اور روح القدس کی تحریک میں ہم دشمن شیطان کے سارے منصوبوں کو فیل کرتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کے لیے خدا کی حمد کرتا ہوں جو ہمیں سن رہے ہیں، اور میں آج صبح آپ کے گھرانہ کے لیے خدا کی برکت چاہتا ہوں۔ ہم خدا کے کلام اقدس میں سے مقدس پالوس رسول کا خط پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا باب اور 26 آیت سے خدا کے کلام کو سنیں گے۔ میں اپنی وائف عثما سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور خدا کے کلام میں مقدس کی تلاوت کریں۔ آمین۔ خدا کے کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، اے بھائیو اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو کہ جسم کے لحاظ سے بہت سے حکیم، بہت سے اختیار والے، بہت سے اشراف نہیں بلائے گئے، بلکہ خدا نے دنیا کے بیوقوفوں کو چن لیا کہ حکیموں کو شرمندہ کرے، اور خدا نے دنیا کے کمزوروں کو چن لیا کہ زوراوروں کو شرمندہ کرے۔ خدا نے دنیا کے نکموں اور بیوقوفوں کو چن لیا تاکہ بے وجودوں کو چن لیا تاکہ وجودوں کو نیست کرے، تاکہ کوئی بشر خدا کے سامنے فخر نہ کرے۔ آمین۔ خدا کے کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ مسیح میں عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک خاص بات پر خدا کے کلام کو سننے والے ہیں، اور وہ خاص پیغام اور خاص پوائنٹ جو ہے وہ خدا کا چناؤ ہے۔ یہاں پر پالوس رسول کرنتھیوں کے کلیسیا کو اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ تم خدا کے فضل کو رد کر رہے ہو۔ جب ہم کرنتھیوں کی کلیسیا کی ہسٹری کو پڑھتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ کرنتھس کے جو لوگ تھے وہ بت پرست تھے، وہ بتوں کے آگے قربانیاں کرتے اور بتوں کی عبادت و بندگی کرنے والے لوگ تھے، اور پالوس انہیں اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ تم کہاں سے لیے گئے ہو۔ اے بھائیو اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو۔ پہلے تم کیا تھی؟ پہلے تم بتوں کی عبادت کرتے تھے، بتوں کے آگے قربانیاں دیتے تھے، لیکن خدا کا فضل تم پر ہوا اور اس نے تمہیں چنا اور مقرر کیا۔ فضل کے جو لفظی اور لغوی معنی ہیں وہ یہ ہے کہ جو آدمی کسی لائق نہ ہو اسے اس لائق بنا دیا جائے، یہ فضل ہے۔ اور خدا یہاں پر اپنے لوگوں پر فضل کرتا ہے، اور پالوس انہیں خدا کے فضل کی بابت بیان کرتا ہے کہ تم خدا کے فضل کو جانو۔ اور یہاں پر وہ بیان کرتا ہے کہ اس نے دنیا کے حکیموں کو، اختیار والوں کو، زوراوروں کو نہیں چنا، بلکہ اس نے دنیا کے کمینوں، حقیروں اور بے وجودوں کو چنا ہے۔ یہ خدا کا فضل ہے۔ میں اپنی بابت بتانا چاہتا ہوں، اپنے خاندان، اپنے گھرانہ کی بابت۔ آج سے 25 سال پہلے جب میں اور میرا خاندان یسوع کی نجات سے غافل تھا، ہم خدا کی قدرت کو نہیں جانتے تھے اور یسوع کو بھی نہیں جانتے تھے۔ ہمارا گھرانہ مختلف قسم کے بتوں کی پوجا کرتا تھا اور چراغ دیوا کرنے والا تھا۔ میرے بھائی مختلف قسم کے نشہ بیچنے والے لوگ تھے، اور ہمارا گھرانہ خدا کی قدرت سے دور تھا،
लेकिन खुदा ने इस घराना में से मुझे चुना और खुदा का आज फैसला है कि हमारा घराना, मेरी पूरी फैमिली खुदा के बेटे में मसरूर है। हालेलुया। ये खुदा का फजल है, उसने हमारी पहचान को बदल दिया है। बहुत दफा जब हम चुनाव करते हैं, बहुत दफा जब हम चुनाव करते हैं, चुनाव का अमल बहुत मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी बेटी के लिए किसी लड़के का चुनाव करते हैं तो हम उन तमाम बातों की पूछताछ करते हैं जो हमारे घराना के लिए जरूरी है। जब हम किसी बिजनेस को रन करते हैं उसके लिए पहले हम अपने माइंड को तैयार करते हैं। लेकिन ये चुनाव का जो अमल है ये जमीन से नहीं बल्कि आसमान के खुदा से जारी होता है। खुदा चुनाव का अमल करता है और मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 15वें बाब में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। यह फसल है कि उसने हमें चुना है और आज उसी की कुदरत में हम बढ़ते और इब्लीस की कुव्वतों को शर्मिंदा करते हैं। हम इंसान होते हुए शायद चुनाव करने में गलती कर देते हैं। बहुत दफा हम अपने चर्च में एल्डर का चुनाव करते हैं, डीकन का चुनाव करते हैं, लेमान का चुनाव करते हैं, पास्टर का चुनाव करते हैं, मबशर का चुनाव करते हैं, लेकिन शायद वो खुदा की तरफ से नहीं होता। और बहुत दफा वही लोग जिनको हम अपने चर्च में चुनते हैं वो चर्च को गिराने का सबब बन जाते हैं, वो कलीसिया को तोड़ने का सबब बन जाते हैं। इसलिए जब भी हम चुनाव का अमल करें, चुनने का अमल करें, सबसे पहले हमें रोशा रखना है, दुआ करना है और खुदा से पूछना है कि खुदा इस इंसान को मैं तेरी खिदमत के लिए मशा करने वाला हूँ, सुनने वाला हूँ, करने वाला हूं, क्या ये तेरी मर्जी है? जब खुदा आपकी रहनुमाई करेगा तो वो इंसान ना सिर्फ आपके चर्च के लिए, आपकी कलीसिया के लिए, बल्कि वो खुदा के काम के लिए बाइशे बरकत होगा। मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जब खुदा ने शमूएल से कलाम किया कि शमूएल यसी के बेटों में से एक को बनी इस्राएल के लिए बादशाह होने के लिए मुकर्रर कर, और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जब वो यस्सी के पास गया और उसने उसे ये तमाम हवाल बयान किया तो यस्सी ने अपने वो बेटे जिनके कद बड़े लंबे थे और कलर सुर्ख था, खूबसूरत थे, उसके सामने खड़े किए और उसने सोचा कि शायद खुदा ऐसा ही भी बनी इस्राएल पर बादशाह चाहता है जो कद आवर हो, खूबसूरत हो, और उसने वो उसे मसा करने लगा। खुदा मना करता रहा, मुसलमान खुदा मना करता रहा। फिर खुदा ने शमूएल से साफ कहा, शमूएल तू ज़ाहिर पर नजर करता है, मैं बातिन पर नजर करता हूँ। हालेलुया। खुदा हमारे दिल के हवाल को जानता है। खिदमत गुजारी का काम छोटा नहीं है, खिदमत गुजारी का काम बहुत बड़ा है। आप जब खिदमत में आ जाते हैं आप खुदा के खानदान से कहलाते हैं, आप खुदा के घराना से कहलाते हैं। आप पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि आप रूहों को जीते, वो लोग जो गुनाह के कब्जा में हैं उन्हें आजाद करें, और ये उस वक्त मुमकिन होगा जब हम खुदा की मर्जी को जानेंगे। और उसने उससे पूछा कि क्या तेरा कोई और बेटा भी है? उसने कहा हाँ, मेरा एक बेटा है जो दाऊद है, वो जंगल में भेड़ बकरियां चराता है, वो जंगल में भेड़ बकरियां चराता है। और जब उसे बुलवाया, आप जानते हैं जो भेड़ बकरियां चराने वाले लोग होते हैं वो उनके कपड़ों से स्मेल आती है। दाऊद के तन पर कोई शाही लिबास नहीं था, वो बहुत कादावर इंसान नहीं था, दाऊद के कपड़ों से स्मेल आ रही है, लेकिन उसके दिल में खुदा की कुदरत है, उसकी जिंदगी में खुदा बसा हुआ है। और जब वो सामने आया तो खुदा ने कहा, शमूएल यही वो है जिसे मैं अपनी इस्राएल पर बादशाह करना चाहता हूँ, और उसने वो सारा तेल उसके सर पर दे दिया। ये वही दाऊद है, ये वही दाऊद है जिसने साउल से कहा, साउल बादशाह जब कोई रीछ या भेड़िया मेरी भेड़ को उठा कर ले जाता है, मैं उसके मुंह को छीन कर उसके मुंह से अपनी भेड़ को निकालता हूँ। ये वही दाऊद है जिसने जाति
मशहूरियत को ढेर किया है। उसे अपने बुलाए जाने का पता था कि मैं क्यों मुकर्रर किया गया हूँ। आज हम खिदमत में आ जाते हैं, हम 4 दिन किसी पासवान के साथ चलते हैं, फिर बाइबल पकड़कर हम अपने आप को पादरी कहलाना पसंद करते हैं। लेकिन हमें खुदा के चुनाव को जानने की जरूरत है कि खुदा हमारी जिंदगी में क्या चाहता है। और जब हम खुदा की रहनुमाई में, खुदा की मर्जी में हम खुदा की कुदरत को फॉलो करते हुए चलते हैं, तो फिर खुदा हमारी जिंदगी में अजीब काम करता है। आप देखें, पतरस वो मछलियां पकड़ने वाला है, उसने कहा तू मेरे पीछे आ, मैं तुझे महागीर से आदमगीर बनाऊंगा। याकूब, यूहन्ना जाल और कश्तियां मरम्मत करने वाले हैं, लेकिन जब खुदा ने उन्हें चुना, उनकी शख्सियत बदल गई, उनकी पर्सनालिटी बदल गई। और जब खुदा ने मत्ती से कहा मेरे पीछे आ, तो वो उसके पीछे आया। खुदा ने उसे एक नया नाम दे दिया। बाइबल कहती है जिस पत्थर को मारों ने रख दिया वही कोने के सिरे का पत्थर हुआ। आज हम पर फसल है, आज ही हम पर फसल है कि हम अंजील के खादम हैं। हालेलुया, इस कलाम के खादम हैं। हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम किसी के नौकर नहीं हैं, बल्कि खुदा ने हमें बेटे बनने का हक दिया है। हम गुलाम नहीं हैं। पौलुस कहता है तुमने गुलामी का रूप नहीं पाया, बल्कि आजादी का रूप पाया है। और आजादी का रूप हमेशा बेटों को मिलता है, गुलामों को नहीं मिलता। फिर हम बाइबल मुकद्दस में से पढ़ते हैं मरियम मगदलीनी का हवाला। आप देखते बहुत सी जगहों पर खुदा ने चुनाव किया। जब खुदा किसी का चुनाव करता है, वो कलीसिया के लिए, अपनी कौम के लिए बायस बरकत होता है। हम मरियम मगदलीनी के हवाले पर गौर करना चाहते हैं। आपको बताना चाहता हूँ, मरियम मगदलीनी मगदला के इलाका के रहने वाली है। बहुत से लोग चूंकि इतर जो है वो लाजर की बहन मरियम ने भी उड़ेला और मरियम मगदलीनी ने भी, बहुत दफा लोग इन्हें एक जैसा महसूस करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मरियम मगदलीनी मगदला के इलाका की रहने वाली थी, और जो मरियम लाजर की बहन है वो बैतनिया के इलाका की रहने वाली है। मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। हम आपको बताना चाह रहा हूँ, खुदा चुनाव करते वक्त हमारी शक्ल सूरत नहीं देखता। आप गोरे हैं, काले हैं, आप बड़े हैं, अनपढ़ हैं, आपके पास बहुत इल्म नहीं है, आप बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करते, आप गरीब हैं, लेकिन जब खुदा आपका चुनाव करेगा तो वो इन बातों को खातिर में नहीं लाएगा। मैं बताना चाहता हूँ मरियम मगदलीनी की बात। मरियम मगदलीनी एक ज़िनाहगार है, फाहिशा औरत है, अपने जिस्म को बेचने वाली है, ज़िनाहगार है। और कोई भी शरीफ घराना अब ज़िनाहगार लोगों के साथ दोस्ती रखना नहीं चाहता, वो ज़िनाहगारों के साथ तल्लक रखना नहीं चाहता। ये तन्हा है और शैतान के हाथों से दुख उठा रही है और ज़िना की हालत में है। लोग इसके पास आते हैं अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए, लेकिन इसे कोई तसल्ली देने वाला नहीं है। एक दिन इसे पता चला यीशु शमौन के घर बैठा है। ये भागी, रन किया, ये दौड़ रही है और उसने शमौन का दरवाजा नहीं खटखटाया, उसने जोर से दरवाजा खोला और सामने अपने निजात दहिंदे को देखा। हालेलुया, अपने निजात दहिंदे को, जिसका नाम यीशु है, जो तसल्ली, इत्मीनान और चुनाव करने में अव्वल दर्जा रखता है। वो यीशु के कदमों में बैठे, लिखा उसने दुनिया के कमीनों और हाकिरों को चुना। वो यीशु के कदमों में बैठ के रो रही है। रोते रोते उसकी आंखों से चश्मा जारी हो गया, एक चश्मा जारी, और वो आंसू यीशु के पांव पे पड़ रहे हैं। और फिर उसने अपने बाल लिए उसे साफ किया, और यीशु भी खामोश है, मरियम मगदलीनी खामोश है। लेकिन शमौन अपने दिल में कहता है अगर ये खुदा का बेटा होता तो जानता कि ये औरत कौन है, जरूर इसके साथ कोई तल्लक है। और खुदा के बेटे ने मरियम से फिर भी कलाम नहीं किया, उसने शमौन से कलाम किया, क्योंकि वो इंसान है। उसने वो चुनाव के अमल को नहीं जानता था। उसने शमौन से कहा, शमौन तू
तू अपने दिल में ऐसा क्यों सोचता है? एक साहूकार के 2 कर्जदार थे, एक ने 500 दिनार देना था, एक ने 100 दिनार या 1000 दिनार, जितने भी आप कह सकते हैं, लेकिन जिसने कम देने थे, और उसने के दोनों को उसने माफ किया। तेरी दृष्टि में कौन ज्यादा खुश होगा? उसने कहा वो जिसके ज्यादा है। उसने कहा शमौन, शमौन, मैं तेरे घर आया, तूने मेरे पाँव नहीं धोए। उसने आंसुओं से मेरे पाँव को धो दिया। तूने मेरे बोसा नहीं लिया, जब से वो इसने मेरे कदम चूमना नहीं छोड़े। शमौन, मैं तुझसे सच कहता हूँ, तू तेरे थोड़े थे इसलिए तू थोड़ा खुश हुआ, उसके ज्यादा थे इसलिए वो ज्यादा खुश हुई। फिर यीशु ने उससे कहा, मरियम, जो कुछ तूने मेरे साथ किया है, जहां कहीं भी अंजील की कलामे अल्लाही की मुनादी की जाएगी, ये हवाल बयान किया जाएगा। और ये वही मरियम है जो यीशु की कब्र पर सबसे पहले पहुंची। ये वही मरियम है जो शागिर्दों के पास सबसे पहले पहुंची। ये वही मरियम है जो बागबान से कहती है, क्या तूने मेरा यीशु तो नहीं उठाया? खुदा हमें बदल देना चाहता है, खुदा हमें चुन लेना चाहता है। फिर मरियम मगदलीनी बदचलन नहीं रही। फिर सामरी औरत का हवाला देखें। सामरी औरत भी ज़िनाहगार है, केली आती है। वो इस्राएली औरतें वो एक ग्रुप की सूरत में पानी भरने आती थी, लेकिन मरियम जो सामरी औरत है वो केली आती है। वो इसलिए केली आती थी कि वो उस कैरेक्टर वाइज ठीक नहीं थी। लेकिन जब उसकी मुलाकात यीशु से हुई, यीशु याकूब के कुएं पर बैठा है, उसने अपने शागिर्दों से कहा, ये चुनाव है, ये खुदा चुनाव करता है। जब यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, तुम इधर से होकर जाओ, मुझे यहाँ से होकर जाना जरूरी है, तो वो याकूब के कुएं पर बैठ गया। जब सामरी औरत ने उसे देखा तो वो सोचने लगी कि शायद इसे पता होगा मैं अकेले इस टाइम यहाँ पर आती हूँ, शायद ये दूसरे इंसानों की बाबत मुझसे अपनी ख्वाहिश पूरी करने की तलब करता है। जब खुदा के बेटे ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, कहती तू यहूदी होकर हम सामरियों से क्यों पानी मांगता है? क्योंकि यहूदी किसी तरह का भी सामरियों के साथ तल्लक नहीं रखना चाहते थे, वो नीच और हकीर जानते थे। फिर यीशु ने उससे कहा, तू मुझसे मांगती मैं तुझे जिंदगी का पानी दे देता। हालेलुया। तू मुझसे मांगती, खुदा चाहता मुझसे मांगे। और यशायाह की किताब में लिखा है, ऐसा प्यासो पानी के पास आओ, वो भी जिसके पास रुपया ना हो। खुदा इस चश्मे को मुफ्त जारी करना चाहता है। और उसने उससे कहा, तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी दे देता। अब वो कहती, तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है, तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है जिसने हमारे लिए कुआं खुदवाया, तेरे पास तो रस्सी डोल भी नहीं है। उसने कहा, जा अपने शोहर को लेकर आ। कहती, मैं बेनकाई हूँ, मेरा कोई शोहर नहीं। यीशु ने कहा, तू 5 कर चुकी है, छठी के पास मौजूद है, वो भी तेरा नहीं है। उसने उससे कहा, क्या तू क्रिस्टस है? उसने कहा, हाँ, जिससे तू बातें करती यही क्रिस्टस है। उसने अपना गड़ा वही तोड़ा और सामरिया में जाकर मनाती करने लगी, तहलका मचा दिया कि मुझे क्रिस्टस मिल गया है, मुझे क्रिस्टस मिल गया। हालेलुया। और वो खुदा के हुजूर मुबशरा ठहराए। घड़ा तो वही तोड़ किसकी पुरानी इंसानियत को जाहिर करता है। अगर आप आज जितने मुझे सुनने वाले हैं, अगर आप चाहते हैं खुदा आपका चुनाव करे, अपने आप को खुदा के हाथों में दी, अपने गुनाहों से तौबा करें, अपने आप को खुदा के हाथों में दे दें और खुदा की मर्जी को फॉलो करें। खुदा क्या चाहता है, खुदा मुझसे क्या चाहता है, रोशे में ठहरे, दुआ में ठहरे और खुदा से के, खुदा तू मुझे बता मैं क्या करूं, तू मुझे बता तूने मुझे क्यों पैदा किया, तेरी मर्जी मेरे लिए क्या है। तो फिर आसमान से खुदा अपने मंसूबा को जाहिर करेगा, वो आपको चुन लेगा, आपको चुनेगा। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे दोस्त, आप जितने मुझे सुन रहे हैं, वो आपको चुनना चाहता है, मुकर्रर करना चाहता है। और एक बड़ा काम जिसे हम खुदा का कलाम कहते हैं, वो आपके सुपुर्द करना चाहता है। जो कि लिखा है, फसल पक चुकी है, बाप से मिन्नत करो कि वो मजदूर मुहैया करे। हमें खुदा के लिए काम करना है। सो आइए अपनी आंखें बंद करें। आप बीमारों के लिए, आप जितने बीमार हैं, अपनी बीमारी पर अपना हाथ रखें और मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। खुदा कुद्दूस लश्करों के खुदावंद जलाल के बादशाह,
अब्राहम के खुदा हमने जाना है कि तू अपने लोगों को चुनना और मुकर्रर करना चाहता है। हम अपने इमालों से नहीं, हम अपनी रास्तबाजी से नहीं, बल्कि हम तेरे फजल से रास्तबाज ठहराए गए हैं। खुदा जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान दोस्त, इन सब पर यीशु के नाम से तेरी कुदरत ठहर जाए। इनमें जो बीमार हैं, बदरूगिफ्ता हैं, पाक खुदा जिनका हार्ट का प्रॉब्लम है, और पाक खुदा जिन्हें आंखों से कम दिखाई देता है, जिन्हें कानों से कम सुनाई देता है, और जिनके रहम और पाक खुदा जिस्म के दीगर हिस्सों में प्रॉब्लम है, जिन्हें हेपेटाइटिस C-B-A है और शुगर है, और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों घुटनों टखनों में दर्द होता है, जो कोरोना वायरस के मरीज हैं, खुदा के बेटे के नाम से लानती बीमारियों यीशु के नाम में छोड़ इन बदनों को खुदा के बेटे के नाम में। खुदा बाप, बेटे और कुद्दस के नाम में ये शिफा पाए। खुदा हमारे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया से कोरोना वायरस की लानत को खत्म करे, खुदा के पाक और जलाली नाम। मैं आने वाले दिनों में कोशिश करूंगा कि हर रोज आपके लिए एक नया कलाम लेकर आऊं। आप हमारे चैनल को, आप हमारे कलाम को सुन सकते हैं हकीकी रोटी के नाम पे। हम इस सारी बातों को आप जब हकीकी रोटी को क्लिक करेंगे तो हमारे मैसेज जो हैं वो आप तक पहुंच जाएंगे। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको और आपके कुंबा और आपकी वजारत को बरकत दे। आमीन।